Good morning, all of you. Today, I, Chavi Gupta, welcome you all in this session. I hope you all are safe and watching the videos regularly. Now, it's time to do our new topic, that is transportation in plants and animals. The first thing is why I have chosen this topic for you, because in the previous chapter we have done respiration in organisms, and in respiration in organism we have seen that the food is being break down into simpler parts, and then it is being moved to other organs. Fine, the food is basically breakdown and gives you energy. So when the food is break down, it gives you some nutrients. So when the nutrients are being produced, we need to transport, we need to get it from the desired sites. So to get the desired site for the nutrients, we need to transport these nutrients in the body, either in plants or animals. Okay, so basically what system helps in circulating the food materials or nutrients, and how it is being transported. So that is the reason why I have chosen this topic. Now, you all know that transportation means to carry things from one place to another. यही हमें पता है कि earlier we used to move from one place to another by foot. Then we developed some vehicles and then modern engines we have made. Now अब बॉडी के अंदर कोई इंजन्स ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए, दैट इज डन बाय सम पर्टिकुलर सिस्टम दैट वी विल डिस्कस जस्ट वेट. बट वो ड्राइविंग फोर्स के लिए हमने टर्म कहते हैं यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन. सो ट्रांसपोर्ट मीन्स टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. सो द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन टू कैरी आउट वेरियस लाइफ प्रोसेसेस. ऑब्वियसली आपने जो फूड खाया था, इट यूज्ड ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन and then gives you energy. Okay, then it gives you carbon dioxide. So you been using O2 and carbon dioxide and some of the nutrients. Okay, so when the O2 and CO2 is formed over here or is being used by your body, how it is being transported is the main concept over here. Okay, now अब आपकी बॉडी ने न्यूट्रिएंट्स यूज़ कर लिए, उसके बाद वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा, तो वो भी हमें बॉडी से रिमूव करना है, तो वो भी ट्रांसपोर्ट होगा. सो द वेस्ट प्रोडक्ट्स produced due to the various functions inside the body also needs to be transported and removed. Therefore, the term transport may be defined as a life process in which a material is absorbed in one part or organ of an organism and is carried to other parts in its body. यही ट्रांसपोर्टेशन का मतलब हुआ. सो एनिमल बॉडी में ये फंक्शन कौन करता है? इंटरनली हमारे पास कोई स्कूटर कार तो है नहीं, सो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम कौन करता है? दैट इज डन बाय वो सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेट क्या होता है कि लाइक मम्मा ने कोई डिश बनाई है, तो आप वो किचन से उठा के पूरे फैमिली मेम्बर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो वो डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहलाएगा? सर्कुलेशन कहलाएगा. बट बॉडी में उसके लिए हमने टर्म दिया है, दैट इज सर्कुलेटरी सिस्टम. कॉन्सेप्ट वही है कि हम ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, बट बॉडी में हमने टर्म दिया सर्कुलेटरी सिस्टम. ओके, now what is a circulatory system? Circulatory system means class, or circulatory system is basically known as your blood circulatory system. Why blood circulatory system? Because all the things which are being formed in the body is being transported through blood only. आपके पूरी बॉडी में ब्लड है, सो ब्लड ही एक्चुअल में ब्लड फूड को या न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. So that's why the circulatory system is known as blood circulatory system. Okay, it makes food बनाता है, water and oxygen available to every part, हर एक पार्ट ऑफ बॉडी में अवेलेबल करता है, और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने में हेल्प करता है. एंड द वेस्ट मटेरियल इज इन द फॉर्म ऑफ यूरिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, सो बेसिकली कौन हेल्प कर रहा है? सर्कुलेटरी सिस्टम. सर्कुलेटरी सिस्टम में मेन पार्ट इज योर ब्लड, बट उसके अलावा भी वी हैव अदर पार्ट्स इन द सर्कुलेटरी सिस्टम, दैट इज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट. सो आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ blood vessels and heart. Okay, now first what is blood क्या है? a fluid tissue that flows in the blood vessels. blood एक ऐसा लिक्विड टिश्यू है, लिक्विड है जो आपके पूरे बॉडी में ब्लड वेसल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करता है. एंड व्हाट इज ब्लड वेसल्स? ब्लड वेसल्स वो पाइप है जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करता है. लाइक पानी है, पानी आपका ब्लड हो गया, वाटर इज योर ब्लड, बट वो वाटर एक पाइप के थ्रू फ्लो कर रहा है, सो दैट पाइप इज योर ब्लड वेसल. ओके,
Now the blood is red in color and it flows through a network of tubes in whole body called blood vessels. Blood red color का होता है, सबको पता है. एक network of tubes से flow करता है, that is a blood vessels. Blood is pumped to every part of the animal by heart. कौन ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है ब्लड को? हार्ट. सो अब हमने ब्लड का ये तो पढ़ी कैसे होता है, क्या होता है. ब्लड के अंदर भी 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. व्हाट आर दे? द प्लाज्मा, the red blood cells, the white blood cells and the platelets. Now the diagram is shown below you. You can see the diagram. Now over here you can see one is red color blood cells. The second, this one is your white color and ये स्टार शेप आपको हमने क्या दिखाया? प्लेटलेट्स दिखाया है. फाइन. एंड द नेक्स्ट वन इज जो आपको येलो कलर का लिक्विड दिखाया हमने, वो क्या है आपका? प्लाज्मा. So these are the 4 components of blood that are present in your blood. ब्लड रेड कलर का दिखता है, बट उस रेड कलर के ब्लड के अंदर बहुत सारी चीज़ें, दैट इज योर रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स एंड प्लाज्मा. ओके, नाउ द फर्स्ट वी विल डू रेड ब्लड सेल्स. व्हाट आर रेड ब्लड सेल्स? रेड ब्लड सेल्स आर रेड इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ पिगमेंट कॉल्ड हीमोग्लोबिन. क्लास रेड वर्ड है, दैट मीन्स वो कैसा है? रेड इन कलर है. क्यों? बिकॉज इट कंटेन्स अ प्रोटीन कॉल्ड द हीमोग्लोबिन. Because it contains a protein called hemoglobin. See, hemoglobin is a protein. This is your protein that makes it red in color, and this protein is obtained from eating a iron-rich diet. That's why doctors always suggest you to eat iron-rich diet, because as much as hemoglobin will form, the blood will become more red in color. दिस, अब इस पिगमेंट का फंक्शन क्या है? दैट इट कैरीज ऑक्सीजन बाय बाइंडिंग इट. जो ऑक्सीजन आप इनहेल करते हो वो ऑक्सीजन ब्लड के साथ बाइंड कर जाती है, एंड ब्लड में पर्टिकुलरली किसके साथ? हीमोग्लोबिन के साथ. ओके, एंड अब हीमोग्लोबिन क्या करता है? रेड प्रोटीन है दैट बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट. बाइंड तो कर गया हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ, अब वो क्या करेगा? ऑक्सीजन, ब्लड हर जगह फ्लो कर रहा है, तो वो ऑक्सीजन को पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करने में हेल्प करेगा. So hemoglobin is red protein that binds with oxygen and transport oxygen to all the parts of the body and ultimately to all the cells. Okay, जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ फॉर्म हुआ तो उसने कैसा ब्लड बनाया? ऑक्सी हीमोग्लोबिन. ऑक्सी मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड, एंड ब्लड कैसा? हीमोग्लोबिन वाला, जिसके अंदर रेड कलर का पिगमेंट प्रेजेंट है. So when hemoglobin binds with oxygen, it means it is an oxyhemoglobin which is being transported to various body parts. Clear है? Now, अब this blood is being transported to various body parts. So body ने क्या किया? ऑक्सीजन यूज़ किया, तो क्या जनरेट करेगा? रेस्पिरेशन में क्या जनरेट हो रहा था? कार्बन डाइऑक्साइड. तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड के साथ बाइंड करेगा, मीन्स वापस. नाउ दिस is being respiration में हमारे पास CO2 जनरेट हो रहा था. दिस CO2 दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड विल अगेन बाइंड विद हीमोग्लोबिन, ब्लड के साथ बाइंड करेगा, सो इट विल जनरेट अ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन विथ CO2. दैट मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड इज कंबाइनिंग विद हीमोग्लोबिन, सो इट इज नोन एज कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड विच इज एक्सपेल्ड आउट फ्रॉम द बॉडी. नाउ दिस वॉज द फर्स्ट white blood cells we have. Red blood cells that we have studied. Now we will do the white blood cells. Now white blood cells means they are white in appearance. Now what is the function of white blood cells? That they fight against infection and protect us from disease. अब हमें कोई भी डिजीज़ हुए तो हमें कौन लड़ने में हेल्प करता है? वाइट ब्लड सेल्स. ओके, तो इसलिए कहा जाता है कि आपकी बॉडी की अगर इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग है तो आपको कोई डिजीज़ नहीं हो सकती. दैट वाज बिकॉज आपकी बॉडी में क्या ज़्यादा है? वाइट ब्लड सेल्स. तो बैक्टीरिया को, जर्म्स को किल कर देंगे एंड अल्टीमेटली दे प्रिवेंट यू फ्रॉम द डिसीज. दैट्स वाई दे आर नोन एज सोल्जर्स ऑफ द सेल्स. सोल्जर्स क्या करते हैं? आपकी कंट्री को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम एनिमीज. सो फॉर द वाइट ब्लड सेल्स ह्यूमन बॉडी इज द country, and then enemy are the disease causing vectors, disease causing bacteria जो आपकी बॉडी को हार्म करने आए हैं. सो बेसिकली वो उनको फाइट करेंगे, उनको भगाएंगे और एंटीबॉडीज डेवलप करेंगे. दैट वाज अवर वाइट ब्लड सेल्स. Now the third one is platelets. The third one is
प्लेटलेट्स, हमने आरबीसी पढ़ लिया, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट अपने ब्लड का डब्ल्यूबीसी पढ़ लिया. द थर्ड वन इज योर प्लेटलेट्स. नाउ ब्लड प्लेटलेट्स आर स्मॉल. प्लेटलेट्स क्या स्मॉल है, इरेगुलर है, टाइनी फ्रेगमेंट्स है जो बोन मैरो में फॉर्म होता है. आपके बोन के अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट होता है, दैट इज योर बोन मैरो. ओके, सो उसके अंदर ये फॉर्म होते हैं. अब ये कलरलेस है. अब इनका काम क्या है कि ये बेसिकली बोन मैरो में जो लिक्विड, बोन के अंदर जो लिक्विड है बोन मैरो, उसके अंदर प्लेटलेट्स फॉर्म होते हैं. उस प्लेटलेट्स का फंक्शन क्या होता है कि वो क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करते हैं. क्लॉटिंग ऑफ ब्लड मीन्स क्लास की आपने देखा होगा जब आपको कोई चोट लगती है तो ब्लड जम जाता है, खून जम जाता है. दैट वॉज बिकॉज ऑफ द प्लेटलेट्स. एंड द प्लेटलेट्स कंटेन अ प्रोटीन फिब्रिनोजन जो एक्चुअल में ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है. ओके, so if a cut or a wound is made, the blood starts flowing from it. अगर कट लग जाता है, वूंड लग जाता है तो ब्लड स्टार्ट कर देता है फ्लो करना. आफ्टर सम टाइम द प्लेटलेट्स प्लग द कट. प्लेटलेट्स कट कर देता है उस प्लग को, जिसकी वजह से ब्लड ब्लीडिंग होना रुक जाता है एंड आपको वहाँ पे एक डार्क रेड कलर क्लॉट फॉर्म हो जाता है. नाउ द नेक्स्ट कंपोनेंट इज योर प्लाज्मा. प्लाज्मा एक स्टिकी लिक्विड पार्ट है ब्लड का जो येलो इन कलर होता है, पेल येलो. इसके अंदर 90% वाटर एंड 3.5% कॉमन सॉल्ट होता है. बट इसके अंदर आरबीसी के अलावा सारा कंटेंट होता है, डब्ल्यूबीसी भी होते हैं और प्लेटलेट्स भी होते हैं. इट कंटेन्स डिजॉल्व सब्सटेंसेस सच एज डाइजेस्टेड फूड एंड द वेस्ट प्रोडक्ट एंड कैरी देम फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट इन द बॉडी. आई होप द components of blood are clear to you. Now it's time to discuss what are the functions of blood. First of all, it transports substances like digested food from the small intestine to other parts of the body. Second, water to all the parts. Third, oxygen and carbon dioxide carrier का वर्क करता है. Fourth, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करने में हेल्प करता है फ्रॉम लिवर टू किडनी. एंड द फिफ्थ वन है कि वो डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करता है. नाउ हमने ब्लड पढ़ लिया, हमने कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड पढ़ लिया, हमने फंक्शन ऑफ ब्लड्स पढ़ लिया. बट मैंने आपको बताया था जैसे वी हैव वाटर एंड द पाइप, तो वाटर इज़ योर ब्लड एंड द पाइप इज़ योर ब्लड वेसल्स जिसके थ्रू ब्लड फ्लो करा है. सो ब्लड वेसल्स पढ़ेंगे अब हम. ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स और पाइप्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. इट रन्स बिटवीन द हार्ट एंड द रेस्ट ऑफ द बॉडी. हार्ट और पूरी बॉडी पार्ट के बीच में सर्कुलेट करता है ये ब्लड वेसल्स. अब हमारे पास 3 मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं. द फर्स्ट इज योर आर्टरीज, सेकेंड वन इज योर वेन्स एंड द थर्ड वन इज योर कैपिलरीज. You can see this diagram over here. These are your arteries. Red color is your arteries, blue color is your vein, and in between arteries और vein का जो connection होता है बिल्कुल thin connection. आप देख रहे हैं कि arteries और vein मोटी हैं, thick हैं, but जो capillaries हैं, these ये जो capillaries आपके बिल्कुल thin है, पतली है. Fine, ये capillaries है आपकी, so बिल्कुल thin है. तो आर्टरीज हर्ट के लिए हर्ट से लेके आती है, वेन्स हर्ट को दे के आती है. अभी हम पढ़ते हैं इसके बारे में. द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ब्लड वेसल्स इज योर आर्टरीज. आर्टरीज का फंक्शन क्या होता है क्लास? दीज कैरी ब्लड फ्रॉम हर्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स. हर्ट को कैरी ब्लड फ्रॉम हर्ट टू ऑल बॉडी पार्ट्स, पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट करते हैं. मीन्स हर्ट से ब्लड आएगा एंड पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट किया जाएगा. अब जो ब्लड हर्ट से आया है वो ऑक्सीजन रिच है. वो कैसा है? ऑक्सीजन रिच है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये. ठीक है. नाउ अब ये कहाँ होता है? लाइक क्वाइट डीप अंडर अवर स्किन. स्किन के बहुत नीचे होते हैं, उसको आप इजीली नहीं देख पाते. इनके पास थिक इलास्टिक वॉल्स होते हैं सो दैट ब्लड बहुत हाई स्पीड से फ्लो कर जाए, और हाई स्पीड से फ्लो करेगा तो आपकी जो ब्लड है उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट्स एक बारी में फ्लो कर जाएंगे. दिस इज़ नोन एज अ पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट. जितना एक्टिव आपका हार्ट होगा उतना ईजिली आपका आर्टरीज में से ब्लड फ्लो करेगा. फाइन. नाउ इलास्टिक मीन्स इसको खींच सकते हैं, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत. नाउ नेक्स्ट इज नो वॉल्व्स आर प्रेजेंट. वॉल्व्स का मतलब क्या होता है क्लास? इस वॉल्व का मतलब क्या होता है? आप मुझे एक बात बताइए, अगर हमें एक रूम से दूसरे रूम में एंट्री चाहिए तो हमारे पास एक डोर होता है बीच में एज अ बैरियर. फाइन. तो सेम वे में आर्टरीज के पास ऐसा कोई बैरियर नहीं होता जिससे जो ब्लड आगे गया वो वापस पीछे आ जाए. फाइन. तो जो ब्लड आगे गया वो वापस पीछे आ सकता है. सो वॉल्व का एक तरह का बैरियर है जो ब्लड के फ्लो को रोक भी सकता है, रोकता है. ठीक है. अब आर्टरीज में वो बैरियर नहीं है. दैट मीन्स ब्लड आगे पीछे जैसे मर्जी सर्कुलेट कर सकता है.
तो वॉल्व क्या है, एक तरह का बैरियर है, लाइक अ डोर, जो हमें एक रूम से दूसरे रूम की एंट्री में जाने के लिए रोकता है। सो आर्टरीज के पास एज सच कोई बैरियर नहीं है जिसकी वजह से ब्लड ईजिली फ्लो कर जाता है यहाँ पे। अब पॉइंट क्या आता है कि हमारी बॉडी से जो हम हार्ट से ब्लड लेके आ रहे हैं उसके लिए एक मेन आर्टरी होती है, दैट इज़ योर एरोटा। एंड ये क्या कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल ऑफ हार्ट टू ऑल द बॉडी। पढ़ेंगे क्लास हार्ट का, जब डायग्राम पढ़ेंगे तो उसमें तब समझ में आएगी। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि हमारे पास एक स्पेशल आर्टरी है। ये आर्टरी क्या करती है, ब्लड, ऑक्सीजन रिच ब्लड लेके आते हैं फ्रॉम हार्ट टू बॉडी। बट एक पल्मनरी आर्टरी क्या करती है क्लास, ये हमारी बॉडी में से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते हैं और कहाँ छोड़ देती है, हार्ट में छोड़ देती है। कहाँ छोड़ देती है, हार्ट में छोड़ देती है। यहाँ पे हार्ट आएगा क्लास। ओके एक सेकेंड, नहीं क्लास सॉरी थोड़ी गलती हो गई है, यहाँ पे लंग्स ही आएगा। सी पॉइंट क्या है, लिसन, आर्टरी का काम क्या है कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से बॉडी में लेके जाना। बट पल्मनरी आर्टरी का काम क्या है, जो आपका हार्ट है वहाँ से ब्लड को लंग्स तक लेके जाना है, सो दैट CO2 कंटेंट बॉडी से बाहर निकल जाए। ओके, सो पल्मनरी आर्टरी क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट से लेके कहाँ जाती है, लंग्स में चली जाती है। ओके, दिस वॉज अवर आर्टरी। नाउ द सेकेंड वन इज अवर वेन्स। वेन्स जस्ट अपोजिट है आर्टरीज का। वेन्स क्या करती है आपका क्लास, वो ऐसी ब्लड वेसल्स है जो पूरी बॉडी में तो सर्कुलेट हुई है, पूरी बॉडीज़ में है, बट वो बॉडीज से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आते कहाँ पे, हार्ट में। आर्टरीज का फंक्शन था कि वो हार्ट से ऑक्सीजन वाला ब्लड लेके जाएगी पूरी बॉडी में। अब बॉडी ने उस ब्लड को यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो ब्लड वापस हार्ट में आ गया। तो कहाँ से आया, बॉडी से हार्ट में आया। सो दैट वाज डन बाय वेन्स। अब सेकेंड ये जस्ट अंडर द स्किन लोकेटेड होती है ना, आपको एक ग्रीनिश ब्लू, तो आपके हैंड पे आपको ग्रीन कलर की पाइप्स दिखती हैं बनी हुई, दैट इज़ योर ग्रीनिश ब्लू ट्यूब्स और लाइंस बिलो द स्किन, दैट इज़ योर वेन्स। तो आप वो ईजिली देख पाते हो। अब इसका फंक्शन क्या है, दीज कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। अब जैसे आर्टरीज के पास कोई वॉल्व नहीं था, कोई बैरियर नहीं था, वेन्स के पास बैरियर होता है। क्यों चाहिए वेन्स को बैरियर, ताकि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी से आए वो वापस बॉडी में मिक्स ना हो। तो वेन्स हैव वॉल्व्स इन देम विच अलाउ द ब्लड टू फ्लो इन वन डायरेक्शन। जो ब्लड आगे आ गया वो वापस पीछे नहीं जाएगा, एंड दैट इज नोन एज टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड्स इन वेन्स। सो अगर कोई आपसे पूछे व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वॉल्व, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड इन वेन्स, ये इसका फंक्शन है वॉल्व का। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज वेन्स हैव थिन वॉल्स एंड ब्लड फ्लोज एट लो प्रेशर। धीरे धीरे फ्लो करता है, एकदम से हाई स्पीड से फ्लो नहीं करता, जबकि आर्टरीज में बिल्कुल हाई स्पीड से ब्लड फ्लो करता था। ओके, नाउ फंक्शन क्या है वेन्स का, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी टू हार्ट। अब जैसे हमारे पास पल्मनरी आर्टरी एक स्पेशल आर्टरी थी, वैसे ही वी हैव अ स्पेशल वेन दैट इज नोन एज पल्मनरी वेन, जो लंग से ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ लेके आएगा, आपका हार्ट में लेके आएगा। सो पल्मनरी वेन दैट इज कनेक्टेड टू द लेफ्ट आर्ट्रियम ऑफ द हार्ट कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स टू हार्ट। ओके क्लास, द थर्ड वन इज कैपिलरीज। हमने ब्लड वेसल्स में आर्टरीज पढ़ लिया, वेन्स पढ़ लिया। द थर्ड वन इज कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या है, बहुत थिन ब्लड वेसल्स हैं जो आर्टरीज और वेन्स को आपस में कनेक्ट करती हैं। ओके, अब ये क्या करती है कि ब्लड में जो भी सब्सटेंसेस हैं वो ईजिली ब्लड सेल्स में, बॉडी सेल्स में चले जाए तो वो ईजिली पास करती है, क्योंकि बहुत थिन वॉल होती है ये। तो दीज अलाउ सब्सटेंसेस टू पास फ्रॉम ब्लड इनटू द बॉडी सेल्स एंड ऑल्सो फ्रॉम बॉडी सेल्स इनटू द ब्लड। ओके, द एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस लाइक जो आपके फूड में जो भी न्यूट्रिएंट्स आए हैं जो ईजिली ट्रांसपोर्ट किए जा सकते हैं स्किन के थ्रू, दैट वाज डन बाय कैपिलरीज। ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज भी हो जाता है,
between the blood and the body cells by the capillaries. Okay class, now so what we have studied in this video is, I hope you must be understood the transportation, circulatory system, components of blood, blood vessels and components of blood vessels. I hope these contents are clear to you. Now here you have some questions that you need to answer. The first is which protein is present in blood that make the blood red in color. कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट है ब्लड के अंदर जो ब्लड को रेड कलर का बना रहा है. द सेकेंड वन इज द प्रोटीन दैट हेल्प इन क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. वो कौन सा स्पेशल प्रोटीन है जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है. द थर्ड वन इज डिफ्रेंशिएट बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. आर्टरीज और वेन्स के बीच में डिफरेंस है. एटलीस्ट 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन टैबुलर फॉर्म. Okay, that's all for today. I hope this content is clear to you, and if you have any doubt you can contact me. Thank you and have a nice day.